Good afternoon. Welcome to the post-lunch session. Before we start the session, a gentle reminder to please do remember to either switch off your cell phones or put them on silent mode. We are now ready to start with the leadership dialogue, Nexus Governance, Multi-Sectoral Dialogues for a Sustainable Tomorrow. So, allow me to extend a very warm welcome to Sri Ram Mohan Mishra, Chairman, Investment Promotion Board, Meghalaya. He's the lead on this session. May I request you, sir, to please join us on stage. Let's welcome him with an applause. We also take the pleasure of extending a very warm and hearty welcome to Sri Navneet Sehgal, Chairman, Prasar Bharati. May I request you, sir, to please join us on stage. We also have in this session Sri Shravan Goyal, Vice President, Seva Bharati Sansthan. May I request him to please join us on stage. And ladies and gentlemen, we are honored with the august presence of His Holiness Acharya Lokesh Ji. May I request Acharya Ji to please join us on stage. Before we start, a brief introduction to our esteemed dignitaries who are now seated with us on the dais. We extend a warm welcome to Sri Ram Mohan Mishra Ji. He is a seasoned IAS officer who superannuates as Secretary, Ministry of Women and Child Welfare. Currently, he is Chairman, Investment Promotion Board, Government of Meghalaya, an alumnus of Allahabad University, Maxwell School of Syracuse, and Harvard University, US. He is also the founder of Governance Foundation and Tathagat Foundation. A very warm welcome to you, sir. We warmly welcome in our midst Sri Navneet Sehgal, Chairman, Prasar Bharati. He is presiding over this session. A very warm welcome to you, sir, and thank you for joining us. We also extend a very warm welcome to a very, very special guest in this session, none other than His Holiness Acharya Lokesh Ji, the founder of Ahimsa Vishwa Bharati and World Peace Center. He is honored with the American Presidential Award at Capitol Hill in Washington. As part of the recognition, Acharya Lokesh Ji received the Presidential Award, Golden Shield, Certificate of Honor, and a citation bearing President Biden's signature. US Congressman Brad Sherman read the certificate and citation. So we have some very august company on the stage in this afternoon session. I now hand it over to the chairperson and the moderators. May both of you please take the session forward. Thank you, ma'am, for your kind words. We also have with us Mr. Shravan Goyal, the Vice President of Seva Bharati Sansthan. And to begin with, this is a very important subject and also complicated. When we talk about sustainability, it has various dimensions. It can be understood as environmental sustainability, sustainability in the economic sense, and also social sustainability, primarily. And therefore, the players in these domains, the stakeholders in these domains, the way they interact with one another, the way they handle the interdependencies and conflicts is a very core issue. And when it comes to environment, we all know water, land, bioresources, and human beings. The way they interplay, the way they interact with one another. So that is what defines our future. And as aptly the title of the session says that the tomorrow, our tomorrow, how will it be with us? So what I propose, subject to approval of the chairman, is that maybe we can spend some time on various ways in which we can enrich our dialogues for this outcome to come to fruition. And this is where I think chairman is the most appropriate person. He is heading Bharati, Prasar Bharati.
and also he had a very distinguished career as an administrator and has vast experience in working in several domains of the governance. So therefore, I think we can, it is fine with you, Navneet. So this is where we can begin, and then coming forward, I think Seva Bharati is we all know that it has done cross-cutting, uh, great work in various fields, various domains. So the economic and social aspects, how we manage the conflicts, how we encourage the dialogue, how we ensure a better tomorrow, which also means little more peace, little more brotherhood, little more well-being of all human beings. So this is why Mr. Goyal, I'll request to devote some time. And Acharya Shri is with us. And how does the spirituality play a role in ensuring what we are trying to target at? How is the cross-cutting contribution of spirituality in our lives? That is important. So Acharya Shri, I mean, is the best person. He is with us. We are honored with his presence. So this is why, I mean, we have already very less time left because I think post-lunch already time is gone. So maybe if chairman agrees, maybe 10 minutes each speaker, 8 to 10 minutes, and then few questions if they're there, we can conclude that. So if it is fine with all the panelists, I think we can do that. So Navneet, please. Thank you. I think the discussion would be in Hindi and English mix, that's called English, shall we call it. That will be better understood. See, first of all, I appreciate and I congratulate the Water Foundation for organizing this seminar and this whole conference on various objects, various subjects relating to water, energy, and the transversality of this whole nexus. As we are all aware, water is essential to life, and conservation of water, efficient use of water. There are plenty of issues at stake as water is becoming a scarce category. I read somewhere that one of the major towns in Brazil, it went out of water. So some of the issues relating to conservation of water, better efficient use of water, and then use of and generation of energy. That's generation of energy. We used to be thermal, basically thermal oriented, shifted to, then slowly moved, hydel, thermal, and then now to solar. So I want to highlight the whole use of excessive use of water, excessive use of coal, then how it affects the environment. And I want to raise this issue of sustainability of our rivers, river pollution, the environmental issues with our rivers, because they are the only water source, because many of the areas are now the groundwater is going deep and deep and deep. So we have to conserve our water, and river conservation and river to maintain our rivers, that's very important. So I want to highlight the thing that the government has been under the leadership of our Prime Minister Honorable Narendra Modi ji. We've been working on conserving water in the sense that there's a scheme called Ghar Ghar Jal. It's a very important scheme in the sense a lot of water used to get wasted when people used to draw it out of well, and a lot of manual hardships were coming across people. लोगों को कुएं से, नदी से पानी लाना पड़ता था, और वो भी पोर्टेबल वाटर नहीं. घर घर नल जो योजना अभी सरकार ने चलाई है, जिसमें कि कई करोड़ घरों को घर पाइप वाटर सप्लाई पहुंचाई जा रही है. बहुत ही एक उपयोगी और एफिशिएंट यूज़ ऑफ वाटर जो मैं कहूँगा, वो उसकी तरफ एक बहुत बड़ा कदम है, और उसको हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए और उसको आगे फैलाना भी चाहिए. क्योंकि जो भी पानी है, हालांकि अगर आप एक फिगर देखें तो हमारे पास पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ जो पोर्टेबल वाटर है
वो दुनिया में जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके 20-30% से भी कम है। तो हमको पानी भी उपलब्ध कराना है और अपना जो ग्राउंड वाटर है उसको भी वेस्ट नहीं करना है, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो है वो नदियाँ ही बचती हैं। और नदियों में हमारे स्टेज पे जैसे आज हमारे साथ स्वामी जी हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा, क्योंकि हमारे जो शास्त्रों में सभी नदियों को माँ का दर्जा दिया गया है, माता गंगा मैया हम बोलते हैं हम, और नदियों के बारे में जब आप मंत्रों का उच्चारण करेंगे उसमें सब गोदावरी, कृष्णा, ये सब नदियों का नाम आता है। तो जो क्रक्स है जो इस सब चीज़ का, वो ये है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट का जब हम देखते हैं कि हमारे शास्त्रों में ये कथन है कि जो है गंगा या नदियाँ हमारी माँ की तरह हैं, तो हम उनको प्रिजर्व क्यों नहीं करते हैं? हम जानते हुए भी कि ये दे आर दी ओनली वाटर सोर्स फॉर अस, वी पुट ऑल काइंड ऑफ स्टफ इन द रिवर्स। तो वो एक जो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है, कम्युनिटी का एक नदियों के साथ जुड़ना है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और जैसे दोनों, जैसे स्वामी जी भी और सेवा भारती बहुत अच्छा काम करता है कम्युनिटी के साथ, समाज के साथ जुड़ के। वो मैं अनुरोध करूंगा कि वो इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। दूसरा जो बड़ा पहलू है वो है एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पे जितना हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हाइडल और थर्मल दोनों ही पानी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हाइडल में तो पानी रीयूज़ हो जाता है, अब जब उन्होंने पंप स्टोरेज का एक जो प्रोजेक्ट्स अब धीरे धीरे देश में आ रहे हैं जिसमें कि वही पानी वापस सर्कुलेट ऊपर करके फिर से उसी एनर्जी क्रिएट की जाती है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ तो वेस्टेज वाटर का, पानी का होता है। इसी तरह से जो थर्मल है उसमें तो प्योर वेस्टेज ही है, वो सब स्टीम बनता है। तो ये दोनों में हम पानी भी वेस्ट करते हैं और थर्मल में जो है धुएं से हम लोग इन्वायरमेंट भी ख़राब करते हैं। तो जो एक एम्फोसिस माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी उसको काफ़ी पिछले 4-5 साल से आगे बढ़ाया है, वो सोलर एनर्जी का है। इनफैक्ट इंटरनेशनल सोलर अलायंस वगैरह भी जो इंडिया में उसकी उन्होंने कॉन्फ्रेंस कराई, बैठक कराई, उसमें इंडिया जो है वन ऑफ द लीडर्स कंट्री है। तो ये जो एक बड़ा टारगेट रखा है एक पूरा सोलर एनर्जी का देश में करने का, क्योंकि हमारे यहाँ जो सूर्य की रोशनी काफ़ी दिन मिलती है और उससे बहुत अच्छा जो एनर्जी है, और एनर्जी एकदम प्योरली जो है वो सस्टेनेबल और ग्रीन एनर्जी है। तो वो एक जो मॉडल है हमारा ग्रीन एनर्जी का और घर घर जल पहुंचाने का, ये दोनों जो मॉडल हैं इस देश के, दोनों मॉडल दे विल हेल्प अस इन नॉट ओनली कंजर्विंग वाटर बट also better and efficient use of water, simultaneously generating energy through green sources, saving a lot of water. So ये जो दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं वो बिना कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के, बिना कम्युनिटी को महसूस किए हुए कि ये हमारे ही लिए हैं, और ताकि हम उतना ही एफिशिएंट यूज़ करें पानी का और एफिशिएंट यूज़ करें एनर्जी का, और हम अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं पानी के, वाटर के, लाइक रिवर्स एंड ऑल दैट, उनको हम साफ़ सुथरा रखें, उनको उनमें अगर पॉल्यूशन हो तो हमें दर्द हो। तो ये एक हमें एक इस कॉन्सेप्ट पे काम करना बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए, बिकॉज इट्स फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। पिछली जनरेशन ने नदियाँ दी हैं, हम अगली जनरेशन को उसे बेहतर रिसोर्सेज हम लोग छोड़ के जाएं। उस कॉन्सेप्ट को मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में बात की जानी चाहिए। मैं चाहूँगा कि हमारे जो दोनों वक्ता हैं सेवा भारती के हमारे जो हैं, और आचार्य जी इस बारे में कुछ ज़रूर अपने बिंदु रखेंगे। धन्यवाद। सो ये जो अभी चेयरमैन साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है, ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स हैं ह्यूमन बींग्स के, जैसे थर्मल अगर हम कर रहे हैं तो उसमें से धुआं निकल रहा है, बट वो क्लाइमेट चेंज के लिए उसको तकलीफ हो रही है और उसके लिए ग्रीन की ज़रूरत है, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन की बात की उन्होंने। और इसी तरह से जब आप देखेंगे जो वाटर सिस्टम्स हैं, तो नदी में एक तो अपर राइपेरियन के लोग हैं, और अगर सारा पानी वो शोषण कर लेते हैं वहाँ पे, तो नीचे वाले के लिए कुछ नहीं बचता। तो इनके जो ह्यूमन स्फीयर में जो हिडन कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो इंट्रिंसिक हैं जो ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए, उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट में जो एक
शांति खो देने की एक संभावना रहती है। तो डायलॉग एक बड़ा प्रभावी माध्यम होता है उसको शमन करने का उसके। और उसके अलावा अगर आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखेंगे, लोकतंत्र में तो संवाद ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से समस्याओं को सुलझाया जा सकता है और सुलझाया जाना भी चाहिए। तो ये जो डायलॉग की बात है, इंटरसेक्टोरल डायलॉग की बात है, तो जो जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो उसमें एवरीथिंग इज फीडिंग इनटू सस्टेनेबिलिटी। अगर पॉलिटिकल टर्मोइल हो गया है तो नथिंग विल वर्क, नो डेवलपमेंट विल वर्क इंक्लूडिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर वो कम्युनिटीज़ का, जैसे वो चेयरमैन साहब हाईलाइट कर रहे थे कम्युनिटीज़ के इन्वॉल्वमेंट की, तो अगर कम्युनिटी लेवल पे इंटरेक्शन शांतिपूर्ण नहीं स्थापित हो पाता है तो फिर उपद्रव की संभावना रहती है और उस उपद्रव में फिर कुछ भी नहीं हो पाता है। तो ह्यूमन जो वेलबींग है, जो फ्यूचर की बात हम कर रहे हैं, वो पूरी तरह से जेपरडाइज होने की संभावना रहती है। तो इसलिए संवाद को कैसे हम बढ़ाएं, कैसे झगड़े को एक किनारे रखकर और बातचीत का माध्यम अपनाएं, ये जो एक तरीका है, ये इस पे बल दिया उन्होंने, मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम पर्यावरण की बात करते हैं, जैसा कि मैं उल्लेख कर रहा था कि ये जो इंटरेक्शन लैंड में, अब जैसे आपकी वनस्पति चली गई तो बहुत सारी मिट्टी जाके वो लेक में डिपॉजिट हो जाएगी, देन यू लूज द लेक। तो वाटर सिस्टम विल नॉट सर्वाइव इफ वी आर नॉट कंजर्विंग सॉइल, इट इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव। तो हम कह रहे हैं हम तो सिर्फ वाटर रिसोर्स में काम करेंगे। इसलिए आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी कन्वर्जेंस पे बहुत जोर देते हैं हमेशा, उनके भाषणों में देखा होगा आपने, और उस पर बहुत उसको महत्व देते हैं कि सारे जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो ये जो वहीं पे ख़त्म नहीं होती सरकार पे। सरकार और जो नागरिक का जो एक संबंध है, आपस में कैसे इंटरफेस कर रहे हैं, कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनका आपस में डायलॉग क्या है, सिटीजन्स पार्टिसिपेशन है कि नहीं, पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स आर दे सिटीजन सेंट्रिक और नॉट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इशूज़। तो इसमें मैं अभी गोयल जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स इसके हैं सस्टेनेबिलिटी के, और उसमें जो इक्विटी के इश्यूज आते हैं, कि जैसे आपने किसी पर्टिकुलर ग्रीन टेक्नोलॉजी को आपने बहुत ज़्यादा उसको महत्व दे दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो उससे जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज़ हैं वो पूरी तरह से आउट ऑफ मार्केट चली गई। तो वो लोग, जो लोग अभी तक उसको उत्पन्न कर रहे थे, वो बाज़ार के बाहर चले जाएंगे। अब उनकी आजीविका का क्या होगा? तो ये इसको एक जो सेंस ऑफ मॉडरेशन इसमें लाना चाहिए, एक जो संतुलन बनाने की आवश्यकता रहती है, वो कैसे स्थापित हो। और इसी तरह से जो पॉलिटिकल सस्टेनेबिलिटी, कि अगर वो लोगों के आपस में झगड़े पर ही सारी ऊर्जा शमन नष्ट होती रहेगी, तो फिर वो शांति की और जो विकास है उसकी बात के लिए समय कहाँ बचेगा। तो गोयल साहब से मैं अनुरोध करूँगा जरा इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे। मंचासीन सभी को नमस्कार। जो सामने बैठे बंधु हैं, वास्तव में तो इस प्रकार के जो डायलॉग के कार्यक्रम में मेरा तो इस प्रकार से पहली बार बैठना हुआ है, क्योंकि हम जो राष्ट्रीय सेवा भारती संघ का एक यूनिट है, उसके माध्यम से देश भर में हम भिन्न भिन्न प्रकार से अपने पर्यावरण के माध्यम से और ऐसे अनेकों माध्यम से कार्यक्रम करते हैं। क्योंकि जल है तो कल है, ये हम सबको पता है, और जल का महत्व, क्योंकि इसके प्रति जो भाव है, ये वास्तव में जनता के मन में, आम पब्लिक के मन में, और अपने पूर्वजों ने इसके बारे में जो बताया है, मेरे को लगता है वो भाव आम लोगों के बीच में आना, इसका बहुत महत्व है। एक जो श्लोक है मैं बता रहा हूँ, उसको अगर हम देखेंगे, क्योंकि रत्न है जल, पृथ्वी त्रीणि रत्नानि जलमना सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रतन संज्ञा विद्यते। पृथ्वी पर जल, अन्न और सुभाषित, ये तीन ही रत्न हैं, किंतु मूढ़ लोग पत्थर के टुकड़े को रत्न संज्ञा से पहचानते हैं। इस सत्य से हमारे पूर्वज भली भांति परिचित थे, इसलिए उन्होंने जल संरक्षण की एक अत्यंत समृद्ध एवं प्रकृति सम्मत परंपरा विकसित की। जैसे जैसे हम उस परंपरा से, समृद्ध परंपरा से करते गए, वैसे वैसे जल संकट का विविध रूपों से सामना करने लगे। इसलिए अपनी उस समृद्ध जल परंपरा में युगानुकूल मार्ग तलाश कर वर्तमान जल संकट का स्थायी समाधान निकालना, अर्थात ये जो हमारे यहाँ प्राचीन परंपराएं थी, अगर हम ध्यान दें कि नदियों को स्वच्छ रखना, अपने यहाँ कुएं तालाब बनाना, और इस प्रकार की धीरे धीरे रचना समाप्त होती जा रही है। मैं समझता हूँ कि आज एक अवेयरनेस की ज़रूरत है, और इसके लिए डायलॉग की, जैसे अभी बताया, डायलॉग की तो ज़रूरत है ही। इसको हम जितना व्यापकता करेंगे, क्योंकि इसके लिए सामाजिक स्तर पर, नागरिक स्तर पर और व्यक्तिगत स्तर पर
हम सबको प्रयास करने होंगे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे प्रयास कई बार चूक जाते हैं। अगर जो आज देखेंगे, यानी गाँव में तो फिर भी शायद थोड़ा बहुत इसकी तरफ ध्यान जा रहा होगा, पर शहरों में इसकी बहुत अनदेखी हो रही है। और मेरे को लगता है कि इसमें व्यक्तिगत स्तर पर अगर व्यक्ति प्रयास करे तो बहुत बड़ा इसका अंतर पड़ने वाला है। यानी जो व्यक्तिगत अपना जीवन रहता है, उसका नित्य प्रति जीवन में अगर वो, मेरे को लगता है कि अपने प्रातःकाल उठने से जो स्नान से लेकर, क्योंकि स्नान करना तो एक बाल्टी से करना है, शेव करनी है तो उसके लिए नल का ना खोलकर एक मग का प्रयास करें, ऐसे अनेकों छोटी छोटी बातें हैं। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की जो संरचनाएं हैं, हमारा जो प्रयास जो सेवा भारती है, क्योंकि देश भर में हमने पूरे देश को जैसे 46 प्रांतों में बांटकर आगे छोटी छोटी यूनिट पर इसका प्रयास किया है। उसके अंदर एक पर्यावरण गतिविधि हमारी, उसके माध्यम से स्थान स्थान पर तालाबों का निर्माण, अपने मध्य में वैसे नीचे बैठे भी हुए हैं अपने पर्यावरण गतिविधि के कार्यकर्ता। इस प्रकार के अनेकों प्रयास, क्योंकि जब तक जनता को अवेयर नहीं करेंगे, सरकार के तो काम यानी हर घर जल, हर घर नल, इस प्रकार का प्रयास है, पर जब तक आम जनता का इसमें समर्थन नहीं मिलेगा, मैं समझता हूँ कि ये शायद जो प्रयास है उतनी सफलता नहीं मिलने वाली। इसके ऊपर हमारा राष्ट्रीय सेवा भारती का भी बहुत अधिक जोर है। तो गोयल साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि ये जो पहले एक सामुदायिक भावना से लोग बावली खोदते थे, बावली बनाते थे, कुएं खोदते थे, और बहुत सारा काम श्रमदान के माध्यम से सामूहिक रूप से होता था। एंड दैट वाज वेरी सस्टेनेबल, कि वो सब लोग अपना ही एक गांव के स्तर पे सब काम कर लेते हैं। तो एक जो ओवर डिपेंडेंस है सरकार पे या शासन पे, वो नहीं होती थी। तो एक सस्टेनेबिलिटी का एक बहुत बड़ा पक्ष है कि ये जो सेल्फ गवर्नेंस कितनी है, स्वराज जिसको बोलते हैं, कि सिर्फ अपना काम आप अपने आप कर ले रहे हो, किसी दूसरे पे निर्भर हो। तो जितना ज़्यादा हम डिपेंडेंसीज को बढ़ाएंगे उतने ज़्यादा वो अनसस्टेनेबल होता जाएगा, बिकॉज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस विल गो अप। तो ये बहुत अच्छी बात कही है साहब आपने। और जो परंपरा की आपने बात की, वो मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि हमारे जो मैनेजमेंट सिस्टम्स रहे हैं प्राचीन काल से, परंपरा से, तो उसमें हमारे ऋषियों ने कहा था कि 4 पुरुषार्थ हैं हमारे, और वो चारों महत्वपूर्ण है, उनमें संतुलन होना चाहिए। तो एक तो उन्होंने कहा काम, मनुष्य का मूल जो उसको चालित करता है वो कामनाएं होती हैं, और उनकी पूर्ति के लिए चाहिए अर्थ, वो भी कमाना जरूरी है। पर अगर ये धर्म से जुड़ी नहीं है, तो धर्म को अगर आप गहराई से देखेंगे तो जैसे गवर्नेंस का सारा सिस्टम है, नीतियाँ कैसी हैं, कानून सही ढंग से प्रभावी ढंग से लागू हो रहे हैं कि नहीं लागू हो रहे हैं, जो आदमी अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए दोहन ज़्यादा कर रहा है, से ग्राउंड वाटर फॉर एग्जाम्पल, या पोल्यूशन कर रहा है चीज़ों का, या जो वातावरण के जो अवयव हैं उनमें दूषित कर रहा है उनको, तो उसके लिए कानून और उसका प्रभावी अनुपालन आवश्यक है। नहीं तो उसकी कामनाएं जो हैं, चाहे वो व्यक्ति के लेवल पर हो, चाहे समूह के लेवल पर हो, चाहे राष्ट्र के स्तर पर हो, उन कामनाओं का अगर शमन न किया गया तो फिर वो बहुत मुश्किल है, फिर वो कोई भी संतुलन नहीं रहेगा और कोई भी सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगी। इसी तरह से जो अर्थोपार्जन है कि अब सारे नेचुरल इकोसिस्टम का दोहन करके और हम सारा खजाना अपने घर में भर लेंगे। तो एक कहीं मैं साउथ में कभी गया था, मैं जब वाटर रिसोर्स में था, तो वहाँ एक मैगजीन में पीछे मैंने पढ़ा था, लिखा था कि ओनली व्हेन द ह्यूमन बीइंग्स हैव कॉट ऑल द फिश, दे हैव पोल्यूटेड ऑल द वाटर सिस्टम्स एंड दे हैव कट ऑल द ट्रीज, विल दे रियलाइज दैट द मनी कैन नॉट बी ईटन। तो ये जो संतुलन है, दैट इज़ द कोर ऑफ सस्टेनेबिलिटी। इसलिए हमारे जो ऋषियों ने कहा था कि कामनाओं के पीछे भागो, अर्थोपार्जन भी करो, पर धर्म के मार्ग से करना, नहीं तो हो सकता है तिहाड़ में चले जाओ। एक तो उसका ये होगा, एक तिहाड़ में जा सकते हो, और अधर्म के मार्ग पे चलोगे तो अन्याय करोगे लोगों के साथ, इनइक्विटेबल सोसाइटी क्रिएट होगी, उसमें फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा, फिर मारपीट होगी, फिर एक बेटर फ्यूचर कहाँ से आएगा। तो फिर उन्होंने कहा था अगर 3 चीज़ें ठीक से करते हो संतुलित, तो मुक्ति फलित होगी। मुक्ति कहाँ से? मुक्ति अज्ञान से, अन्याय से, अभाव से, और इन सब की अगर मुक्ति होती है, दैट इज़ अ बेटर फ्यूचर फॉर ह्यूमन बींग्स। तो अब हमारे सम्मुख और हमारे मध्य हिज होलीनेस आचार्य ऋषि मौजूद हैं। तो इस विषय पर तो मुझे तो कोई ज़्यादा ज्ञान है नहीं, तो इनसे मैं अनुरोध करूँगा कि ज़रा इसको और आगे बढ़ाएं चर्चा को,
और ये संतुलन जो धर्म अर्थ काम मोक्ष का है, ये मनुष्य के भविष्य को कैसे सुनिश्चित कर सकता है, इस पर थोड़ा आचार्य श्री आप और। सर्वप्रथम इंडिया वाटर फाउंडेशन को, भाई डॉक्टर अरविंद जी को इस बात के लिए साधुवाद कि उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, और केवल भारत के परिप्रेक्ष्य में ही नहीं, पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में इस समय महत्वपूर्ण विषय है, उस पर एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया है। और अभी हमने मंच पर विद्वान वक्ताओं को सुना, हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल जी को सुना, हमने मेघालय सरकार के चेयरमैन राम मोहन मिश्रा जी को हमने सुना, उसी तरह से हमने प्रसार भारती के वाइस प्रेसिडेंट श्रवण गोयल जी को सुना। मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। भारतीय संस्कृति ने सदैव संतुलन की बात की है। चाहे आप उपनिषद पढ़िए, जिसकी पुरुषार्थ चतुष्टय की अभी चर्चा संक्षिप्त में विद्वान महोदय ने की, और धर्म का सदैव यही मार्गदर्शन रहा है, धर्म का डेवलपमेंट से कोई विरोध नहीं है, विकास से धर्म का विरोध नहीं है, किंतु धर्म का यह मार्गदर्शन अवश्य है कि विकास अध्यात्म की नींव आधारित बनता है तो वो जीवन में वरदान बनता है, और नहीं तो कभी कभी वो विकास हजम नहीं होता है तो वो वरदान की बजाय अभिशाप बन जाता है। और इसके लिए आप चाहे उपनिषद पढ़ लो, चाहे जैन आगम, चाहे वेद, चाहे भगवत गीता जी लीजिए। आप भगवत गीता जी का आखिरी श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर है तत्र श्री विजयो भूति दुर्वा नीति मतिर्मम है। लोकमान्य तिलक जी ने टीका लिखते हुए इस श्लोक का बहुत ही लीक से हटके अर्थ किया उन्होंने, और उन्होंने योगीराज कृष्ण को अध्यात्म का प्रतीक माना और अर्जुन को भौतिकता का प्रतीक मानते हुए कहा कि जहां पर अध्यात्म और भौतिकता के बीच में संतुलन है, वहीं पर विजय है, वहीं पर भूति है, वहीं पर श्री है और वहीं पर लक्ष्मी है। आज सारी समस्या है जब ये संतुलन गड़बड़ाता है, जब अर्थ काम धर्म और मोक्ष में से केवल अर्थ और काम के पीछे अंधी दौड़ लगती है, तब समाज में विकृतियां उत्पन्न होती है, तब पर्यावरण को भी वनों की अंधाधुंध कटाई होती है, खनिज पदार्थों का अंधाधुंध दोहन होता है, और उसी से हमारी सृष्टि का संतुलन बिगड़ता है। हमारे सभी धर्मों में, चाहे आप हिंदू धर्म के ग्रंथ लीजिए, चाहे जैन धर्म के लीजिए, चाहे सिख धर्म के गुरु नानक देव जी की वाणी लीजिए, मैं अगर जैन दर्शन की आपको बात करूं तो भगवान महावीर ने 60 जीव निकाय का एक मौलिक सिद्धांत दिया था। पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। ये जो 60 जीव निकाय का जो सिद्धांत है, मैं समझता हूं ग्लोबल वार्मिंग की आज दुनिया की सबसे बड़ी जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है, और उस परंपरा में वाटर में जीव नहीं, पानी स्वयं जीव है। उन्होंने अपने उस ज्ञान के द्वारा, और आज वो ज्ञान विज्ञान के धरातल पर, पिछले वर्षों जापान के एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने पानी पे काम करते हुए पानी को तोड़ा और उसका एक क्रिस्टल का निर्माण किया। आप गूगल पे जाके देख सकते हो उसको। और क्रिस्टल का निर्माण करते वक्त वो भावना से भावित करते हैं, जैसे हमारे आयुर्वेद में बनती है ना, सहस्त्रादि पुटी भावना दी जाती है। वो उस समय लव का, प्यार का, मोहब्बत का, स्नेह का भाव प्रकट करते हुए और उसका निर्माण करते हैं। इतना खूबसूरत क्रिस्टल का निर्माण होता है, आपका मन करेगा कि मैं अभी इसको खरीद लूं। वही साइंटिस्ट फिर दोबारा प्रयोग करते हैं और उस पानी पर उसको तोड़ते हुए इस बार वो घृणा का, नफरत का भाव लाते हुए उसका निर्माण करते हैं। वो मटमैला
उसका स्वरूप बनता है। पानी में जीव नहीं, पानी स्वयं जीव है। उसी तरह से 2600 वर्ष पूर्व कहा गया कि वनस्पति में जीव है। हालांकि उस जमाने में ये माना गया कि भाई बड़ी बड़ी गप्पे हैं जो सारी इन्होंने हाँकी है। ये तो कालांतर में वैज्ञानिक जगदीश चंद्र हुए और उन्होंने अब तो हमारे पास ऐसी खोजें हैं कि आप पानी का लोटा लेके जाइए, पीपल को पिलाने की भावना से वैज्ञानिकों ने ग्राफ उकेरे हैं, पौधा प्रफुल्लित होता है। और आप कुल्हाड़ी लेके जाते हो कि मैं अभी जाऊंगा और इस पौधे को काटूंगा, वो ऐसे थरथर कांपता है जैसे मलेरिया बुखार में कोई कांपता है। बंधुओं और बहनों, हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पूर्व जो है हमारे यहाँ पर है ना, आप गुरु नानक देव जी की वाणी ले लीजिए, उन्होंने हवा के लिए, उन्होंने पानी के लिए। आप हिंदू परंपरा के हमारे यहाँ जो शांति पाठ है जिसके अंदर है ना, तो मैं तो बल्कि प्रसंगवश भाई संजय जी को साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी बढ़िया कॉन्फ्रेंसों में तो बहुत जाते हैं, भागते रहते हैं, लेकिन एक अच्छे विषय पर जो है आज इसकी बहुत जरूरत है। लेकिन मैं भारत के संदर्भ में ये भी कहना चाहूँगा, मेरी दाईं बाईं और वो लोग बैठे हैं जिनकी आवाज़, वो सरकार की मीटिंगों में भी जाते हैं, वो नीति आयोग में भी बैठते हैं, प्रधानमंत्री जी को भी सुझाव देते हैं। हालांकि हमारी वर्तमान की सरकार, मैं कह सकता हूँ, वो भारतीय संस्कृति और परंपराओं की वो विरासत को सहेजने वाली सरकार है। ये बात मैंने कल महाराष्ट्र में शपथ समारोह के दौरान भी, मुझे जब देवेंद्र जी मेरे पास आए तो मैंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा। लेकिन मैं ये अवश्य कहना चाहूँगा, कहीं न कहीं मेरे मन में एक पीड़ा जरूर है कि जिस तरह से आबादी का विस्फोट है, कितनी ही कल्याणकारी योजना बनाए वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो जाती है। इस बिंदु पर भी समय रहते बहुत ध्यान देने की जरूरत है, वरना हम जितना भी प्रयास करते हैं, आप आज देख लीजिए, हमारा एक विश्व शांति केंद्र बनकर के तैयार खड़ा हुआ है गुरुग्राम में, मेदांता हॉस्पिटल में। कल संजय जी को मेरे साथ चलना है, इन्होंने कहा संडे को ड्राइवर की छुट्टी है, मैंने कहा संडे में ही जाना है, मैं भलाई है। बोले क्यों? मैंने कहा जाम इतना लगता है वरना आधा दिन उसी में निकल जाएगा। तो हम चाहे कितना भी, क्योंकि रोजाना इतना व्हीकल सड़क पे उतर रहा है, मेट्रो होने के बावजूद ये स्थिति है। ऐसे के अंदर ये जनसंख्या नियंत्रण की बात भी, क्योंकि वो इन सबको प्रभावित करती है, तो ऐसे के अंदर मैं इतना ही कहूँगा। और क्योंकि समय सीमा के अंदर मुझे भी, हम सब के भीतर 3 प्रकार की चेतना है। जब तक सरकार का काम है प्रशासन का, और संतों का काम है हृदय परिवर्तन का, दोनों मिलकर के समवेत रूप से प्रयास करें। संतों का काम हृदय परिवर्तन का है, क्योंकि हमारे भीतर जब तक हमारी भीतर की चेतना नहीं बदलेगी, हमारी दृष्टि नहीं बदलेगी, हमारा दृष्टिकोण नहीं बदलेगा, यादृगी दृष्टि तादृगी सृष्टि, दृष्टि के पीछे सृष्टि का निर्माण है। हम सबके भीतर 3 प्रकार की चेतना है। बात को संपन्न कर रहा हूं, स्वार्थ की चेतना, परार्थ की चेतना, परमार्थ की चेतना। अंग्रेजी वाले कहेंगे ये बड़े क्लिष्ट शब्द है, हमारे ऊपर से जा रहे हैं, तो सरल भाषा, ये स्वार्थ का मतलब मेरा सो मेरा, तेरा सो भी मेरा, ये है स्वार्थ। परार्थ का अर्थ है मेरा सो मेरा और तेरा सो तेरा। किंतु जो परमार्थ की बात है, तेरा सो तेरा, मेरा सो भी तेरा, जब तक हमारे भीतर स्वार्थ विगलित नहीं होता है, तब तक न परार्थ और परमार्थ की बात न दिखाई देती है न सुनाई देती है। एक मित्र ने दूसरे मित्र को फोन किया, हेलो, वो मैं राजेश को भेज रहा हूँ 10 लाख रुपए दे देना। वो कह रहा है हेलो हेलो क्या कह रहे हो, आवाज नहीं आ रही। उसने कहा अरे भले आदमी, जो 10 लाख रुपए दिए थे राजेश को भेज रहा हूँ, दे। बोले हेलो, आवाज नहीं आ रही। अब मोबाइल का जमाना नहीं था, बीच में ऑपरेटर था, उसने कहा जी आवाज तो साफ आ रही है, 10 लाख रुपए मांग रहा है। बोले तेरे को सुनाई देता है, तुम दे दे, मेरे को तो सुनाई दे नहीं रहा है। जब तक भीतर में स्वार्थ प्रबल है, न परार्थ की बात दिखाई देती है न परमार्थ की दिखाई देती है। इसलिए मुझे लगता है शिक्षा के अंदर भी, प्राइमरी एजुकेशन से, जब तक हम वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, इन समस्याओं का अगर जड़ से समाधान लाना है, बदलाव का एकमात्र जरिया है वो है एजुकेशन, वो है शिक्षा। इसलिए प्राइमरी एजुकेशन से इस प्रकार के मूल्यों का उसमें समावेश हो, तभी जाकर के बहुत बड़ा बदलाव आ सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ ओम अरहम। स्वामी जी ने बहुत अच्छे वचन कहे हैं।
और जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो उसके दो तरीके हैं। एक तो पुलिस वाले को खड़ा करो लाठी लेके, एक तो वो तरीका है। दूसरा तरीका है कि आदमी के अंदर में जो पुलिसमैन है उसकी जो अंतस चेतना है, उसकी जो कॉन्शियस बोलते हैं इसको। तो हमारी नानी ने हमको, बहुत छोटे थे तो हमको एक चीज़ सिखाई थी, कथाओं में बोलती थी। तो उन्होंने कहा देखो मनुष्य के दोनों कंधे पर एक तरफ वो चित्रगुप्त, दूसरी तरफ विचित्रगुप्त, मुझे अगर नाम ठीक से कर याद है तो वो बैठे रहते हैं और आपके सारे कर्मों का लेखा जोखा निरंतर वो लिखते रहते हैं स्क्रोल पर। सिर्फ उन कर्मों को नहीं जो आपने किया है, परंतु उन कर्मों के भी जिनके बारे में आपने सोचा है। तो जो आईपीसी में जो पनिशेबल जो आपकी चीज़ें हैं वो तो जिन पर आप एक्ट करते हुए हैं, मिनसरिया भी जरूरी है उसमें, पर सिर्फ आप अगर सोचते रहते हो कि हम मन से गाली किसी को दे रहे हैं तो पनिशेबल नहीं है वो। पर चित्रगुप्त विचित्रगुप्त जो है आपको नहीं छोड़ते। वो कहते हैं अगर हृदय कलुषित है आपका तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, आपको उसका दंड दिया जाएगा उसको। तो जो पीनल कोड है वो एक तो बाहर वाला पीनल कोड है जिसमें पुलिस उसको इन्फोर्स करती है, जज उसको इन्फोर्स करते हैं। दूसरा अपने अंदर जो अंतस चेतना का एक पीनल कोड है। तो विज्ञान से बहुत फायदे हुए हैं हमको, पर जब हम 7वीं 8वीं की विज्ञान पढ़ लेते हैं, 9वीं 10वीं की, तो हमको लगता है धर्म में जो हमको शिक्षा दी गई थी वो कहते हैं सब डॉगमेटिक है, ये सब ऐसे ढकोसला, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो जो भले ही वो जो भी रहा हो उसकी जो अत्यंतिक वैल्यू कुछ भी हो, और उसका एक प्रयोजन जो था वो अपने में पूर्ण नहीं हो रहा हो। तो चित्रगुप्त विचित्र को तो हमने विदा कर दिया, और बाहर की जो इन्फोर्समेंट वो भी हम ठीक नहीं करते। तो फिर सस्टेनेबिलिटी कहाँ से आएगी? फिर तो जो इसको जो मर्जी करेगा। तो जो 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 6 शत्रु अंदर बैठे हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर, तो वो प्रभावी रहेंगे, वो प्रबल रहेंगे। और जो स्वामी जी कह रहे हैं आचार्य श्री, वो फिर आपको मति को भ्रमित करेंगे और आपको जो उपदेश है उसके अनुरूप आपको काम नहीं करने देंगे। तो ये जो संतुलन है बाहर की छड़ी और अंदर की छड़ी, इसके विषय में जो धर्म की शिक्षा है और जो अध्यात्म की शिक्षा है, इसकी कंटेंट को बहुत ज़्यादा एक्शनेबल बनाने की ज़रूरत है, मैं जो समझ पाया हूँ। और इसके लिए जो जिसकी हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, बल्कि एक होलिस्टिक एजुकेशन की ज़रूरत है। और होलिस्टिक क्या है? जैसे शास्त्र में कहा था उन्होंने, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। तो आप सिर्फ आदमी को पीएचडी डिलीट दे देते हो, बहुत अच्छी नौकरी भी लगती है, बट वो 42 साल की उम्र में उसको डायबिटीज़ हो जाता है और कुछ खाने लायक नहीं रहता। तो ये उद्देश्य था जीवन का क्या? वाज दैट बेटर फ्यूचर? तो आप 45 साल की उम्र में आपको आ गए 25 करोड़ रुपए आपके पास में, तो आपको हाइपरटेंशन भी है, तो आप सो नहीं पाते हो, और डायबिटीज़ आप खा नहीं पाते हो। तो पैसा इकट्ठा क्यों किया? उसकी ज़रूरत क्या थी आपको? तो ये जो संतुलन है, स्वामी जी जो कह रहे हैं कि ये जो हृदय अंदर से जो आपका परिवर्तित हो, और उस शिक्षा है उसका एक प्रभावी माध्यम। तो ग्रस्त वेश में ये स्वामी जी लग रहे हैं। बहुत अच्छा बात। तो ये एक नीचे से सवाल भी था। आप अच्छा सवाल सवाल अभी, हाँ सवाल अभी, अब सवाल जी, कर लेते हैं पहले, आप फिर कुछ अभी पूछना नवनीत चाहते जी से मैं कुछ और पूछने वाला हूँ, मैं भी सवाल करने वाला हूँ। देखिए, हर बात जो कही जाती है वो एक अपेक्षा से कही जाती है ना। उसके पीछे एक रीजन, जैसे जनसंख्या नियंत्रण इसलिए कह रहा हूँ कि आबादी का विस्फोट बेहताशा हो रहा है। वो चिंता जो कर रहे हैं कि आने वाले समय में जिस तरह से दर कम होती जा रही है, अब इसको सुनने के बाद मेरा मन तो ये कर रहा है कि मैं कहूँ 4 पैदा करो, इसलिए कि लड़के लड़की की नहीं तो वो संतुलन बिगड़ जाएगा। अब आदमी होशियार है, 2 लड़के होते तो स्टॉप कर देगा, लेकिन 2 लड़कियां हो गई तो और लाइन लगाएगा। तो ये भाव हमारे कहीं न कहीं आज भी है, आप जानते हैं सब जो भारतीय परंपराओं में। तो ये जो भी कहा जा रहा है वो सभी अपने अपने ढंग से एक अपेक्षा से कह रहे हैं, और उसके पीछे भी गूढ़ रहस्य है, गूढ़ कारण है, और उस पर विचार मंथन होना चाहिए। नहीं, जो देखिए वो एक बैलेंस एक होना होता है, एक बैलेंस होना होगा। जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, लेकिन एक बैलेंस होना होगा। जैसे अभी कई देशों में, जापान की बात करिए, वहाँ जो उनकी एवरेज एज है वो 60 साल से ऊपर हो गई है, तो उसमें यूथ ही नहीं बचा है। जर्मनी देखिए, बहुत सारे यूरोप के देशों में
आपको काम करने वाले लोग ही नहीं मिलेंगे। तो ये भी तो ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए ना कि आप ऐसा एक्सट्रीम में चले जाओ। अब चाइना की आप बात कर रहे हैं, अब चाइना ने तो वो पॉलिसी अब त्याग दी क्योंकि उनके यहाँ भी एजिंग हो गई है पॉपुलेशन उनकी जो जनसंख्या है वो बूढ़े बूढ़े सब हो गए हैं, जवान है ही नहीं, उस संख्या में नहीं है जितना चाहिए, तो वो भी हालत ठीक नहीं है ना। तो वो एक बैलेंस एक होने की है और ये मुद्दा जो है एक आम बहस का मुद्दा होना चाहिए। तो वही तो हमारी शक्ति है साहब, वो जो यूथ है ना, यूथ जो है वो हमारी शक्ति है। हम अपने आप को चाइना से ना कंपेयर करें, चाइना वाले कैसे खत्म कर सकते हैं वो हम लोग नहीं कर सकते। Is there somebody you ask? Yeah, please. You want to ask a question? Yeah. We can hear it. Yeah. तो वो हमारे यहाँ भी फरिश्तों का अक्सर ये कहा जाता है कि वो बैठे रहते हैं और आप कोई भी चीज़ बोलिए, कोई भी चीज़ करिए, तो वो सारी चीज़ें जो है नोट ले रहे हैं। तो लगभग सारे धर्मों में इस चीज़ के बारे में जिक्र है, लेकिन मुझे खुद पता नहीं है कि इतनी बड़ी आबादी है बट लोग नमाज भी पढ़ते हैं, लोग रोज़ा भी रखते हैं, लेकिन वो सब मस्जिदों तक ही सीमित रहता है। जब उससे बाहर लोग जाते हैं तो पता नहीं क्या हो जाता है कि लोग क्या सोचते हैं। तालीम एक अलग चीज़ है, तरबियत जिसे कहते हैं, ट्रेनिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सुंदर। तो उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी मतलब मोहन भागवत जी के स्टेटमेंट पे इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया, एक अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे टीचर हैं JNU के, तो उनका मतलब आर्टिकल है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो कंसर्न है वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है। इट्स ए काइंड ऑफ, प्रोफेसर अमिताभ कुंडू का आर्टिकल है, तो उन्होंने कहा है कि मतलब एक इशू है बट इतना ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने मतलब आर्टिकल पढ़ा, आप लोग सब उसको रिफ़र कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नहीं, देखिए, जो जनसंख्या नियंत्रण करना तो बहुत आवश्यक है, उसको कोई सा भी इकोनॉमिस्ट मना नहीं कर सकता है। बिकॉज क्या है कि जितना रिसोर्स हमारे पास है, उस रिसोर्स से 100 करोड़ की जनसंख्या हम पालते हैं या 25 करोड़ की जनसंख्या पालते हैं, दोनों में बहुत फ़र्क होता है ना। तो ये इसलिए उस इशू को आप पीछे नहीं छोड़ सकते कि सब जनसंख्या नियंत्रण नहीं चाहिए। अब जनसंख्या नियंत्रण का क्या मॉडल हो, क्या फार्मूला हो, वो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये एक हमारे यहाँ आम में बहस का विषय होना चाहिए, क्योंकि वो बहस का विषय नहीं है। होना चाहिए बहस का विषय कि क्या जनसंख्या नियंत्रण और कैसा होना चाहिए, 2 या 3 या क्या होना चाहिए, ये एक मुद्दा बहस का होना चाहिए, आम आदमी के होना चाहिए। बिकॉज हम अगर आप देखो ना, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, हम दुनिया की, अब देखिए पिछले 10 साल में हम दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति हैं। हमारी GDP दुनिया की 5वीं बड़ी GDP है, 3 नंबर पे होने को जा रही है। लेकिन अगर आप उसको साथ साथ कंपेयर करें, पर कैपिटा इनकम अगर हमारी देखें तो हम कहाँ हैं? तो जहाँ हम एक तरह से आर्थिक शक्ति बन रहे हैं वहाँ पर कैपिटा कम है। तो उसका सारों का जो निचोड़ है वो आबादी ही तो है कि वो उतने रिसोर्स इतने बड़े लोगों में बट रहा है, तो इसीलिए वो पर कैपिटा कम हो रहा है। तो वो तो ज़रूरी है, लेकिन उस पर बहस की बात है अब ये है कि कैसे हो, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक देश हैं, हमको सबको साथ लेके चलना है। सरकार भी सबका साथ सबका विकास पे काम करती है, तो इसलिए ये एक बहस का मुद्दा होना चाहिए। क्योंकि ये जो सारा वाटर, एनर्जी, एनवायरनमेंट का जो नेक्सस है,
इसका मूल कारण वो वहाँ घूम फिर के वही आबादी आ जाता है, बिकॉज यू नीड सो मनी रिसोर्सेज। आपको चाहिए, आपका जैसे मैंने अभी एक उदाहरण अभी दिया, अगर आप देखो तो पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन में हम बहुत नीचे हैं, पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन में हम बहुत नीचे हैं। यूएस वगैरह में पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन हमसे कई गुना ज़्यादा है, 20-25 गुना ज़्यादा होगी। हमारे सामने बैठे हुए हैं, हमारे यूएन के एनर्जी एनवायरनमेंट प्रोग्राम के हेड थे, तो कई गुना ज़्यादा होगी। तो अगर उस लेवल पर अगर हम लाना चाहते हैं तो हमें तो कितना रिसोर्स चाहिए, ठीक ना। तो ये एक बड़ा अलग अलग इकोनॉमिस्ट की अलग अलग राय हो सकती है, बट इससे कोई मना नहीं कर सकता कि साहब हमको वी नीड टू कंट्रोल आवर पॉपुलेशन बिकॉज आवर रिसोर्सेज आर स्केर्स। होने वाला। तो अभी आप दो लोग और बोलना चाहिए। हेलो। जल ही जीवन, वायु जीवन, जीवन जल और वायु से, आओ करें इनका संरक्षण, यह कर्तव्य हमारा है, निज संकल्प हमारा है। जल से ही तो कल है सुरक्षित, हवा प्रदूषण मुक्त रहे, श्वास श्वास निर्भर है इन पर, स्वच्छता युक्त रहे। वृक्ष लगाए जल को बचाए, माँ वसुधा ने पुकारा है, आओ करें इनका संरक्षण, यह कर्तव्य हमारा है, निज संकल्प हमारा है। वन की पूजा मेघ देवता, सीख ये मिलती पुरखों से, नदी है माता शिखर देवता, ज्ञान ये मिलता वेदों से। प्रकृति प्रेम जीवन अपनाए, यह युग धर्म हमारा है, आओ करें इनका संरक्षण, यह कर्तव्य हमारा है, यह कर्तव्य हमारा है। जल ही जीवन, वायु जीवन, जीवन जल और वायु से, आओ करें इनका संरक्षण, यह कर्तव्य हमारा है, निज संकल्प हमारा है। धन्यवाद। थैंक यू। ये बड़ा अच्छा समापन के लिए, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता था। ये कविता, इतनी सुंदर कविता के माध्यम से सेशन कविता जी का सवाल फिर अगली बार ले लें। पैनलिस्ट का बहुत बहुत आभार है और इंडिया वाटर फाउंडेशन का विशेष आभार है। थैंक यू। Before the dignitaries leave, may I request you to please kindly stay back. We have a memento presentation. We would like to present a memento to the honorable dignitaries as a token of our appreciation and thanks. Dr. Arvind Kumar, thank you for joining us on stage to do the honors. Our thanks to Sri Ram Mohan Mishra. A big thanks to His Holiness Acharya Sri Lokesh Ji.
We thank Sri Shravan Goyal. Our thanks to Sri Navneet Sehgal. Thank you, and once again, we thank you all for making it a very lively discussion. I'm sure everybody enjoyed it.